Okay, hello everyone. Devinder Singh, please mute yourself. And who's this? Suman Sharma. Hanji, you are attending the class first time, Suman Sharma? Okay, so there was a lot of issue on my system. I couldn't able to open any document. So that's why it took a lot of time to share you the link. Okay, chalo, let's get started. Finally, the things are fine now. So what we have to do is we have to start a new topic called relational algebra. ठीक है, relational algebra क्या है basically? This is a kind of one more language through that we could be able to write our queries. देखो, हम MySQL पे we are using we are working on MySQL database, right? And we are using SQL, which is a non-procedural language. ठीक है, but relational algebra कैसी language है? Relational algebra is a kind of your procedural language. So what kind of a language it is? Relational algebra जो है, relational algebra is a procedural language. Procedural language का मतलब क्या होता है? Procedural, we can say procedural query language. Any query that you see, let's suppose हमने अभी SQL के अंदर हमने थोड़ी बहुत queries करी है ना, we are making use of select command, we are making use of all the commands that we have learned in DDL and DML languages. Relational algebra is another kind of a query language. जैसे आप हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, आप एक सेम सेंटेंस को हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, सबकी ग्रामेटिकल रूल्स अलग अलग है ना? जापानीज के अलग रूल्स है, फ्रेंच के अलग रूल्स है. एक ही बात को यू कैन राइट इन मल्टीपल लैंग्वेज. सिमिलरली, अगर आपको अपने डेटाबेस से कुछ भी क्वेरी करना है, उसके लिए यू हैव वेरियस सेट ऑफ लैंग्वेजेस. जैसे इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा, व्हिच इज अनदर डिफरेंट प्रोसीजरल लैंग्वेज. प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स, you will be telling that you how the query will be getting executed. कोई भी क्वेरी है, आपके पास कोई डेटा, कोई टेबल्स है, उसमें से आपको कुछ डेटा रिट्रीव करना है, तो उसके लिए वी आर मेकिंग यूज ऑफ सम ऑफ द क्वेरी, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स. उसको लिखने का तरीका क्या है इन रिलेशनल अलजेब्रा, दैट वी हैव टू लर्न इन टुडेज क्लास. Moreover, I am saying that relational algebra is a procedural language. Why? Because in that we will be telling the complete procedure with the help of various operators, that how the data will be getting retrieved from the table. Is it clear what we are studying in today's class? The agenda of the class is clear to all? Yes, ma'am. So, series of well-structured steps. Yes. So let's get started. The relational algebra क्या होता है? ठीक है, देखो, सबसे पहले we will be learning how we are going to use this select and project. देखो, हमने SQL के अंदर select operator का यूज किया है. select operator हम किस लिए यूज करते हैं? Why do we use that select operator? If we want to select some of the rows, ठीक है, rows को हम क्या बोलते हैं? Tuples. तो हम क्या लिखते थे? select this from employee table, where कंडीशन का भी यूज करते थे, राइट? तो देखो, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एक क्वेरी आपको दे देंगे, they will say you that write the query in relational algebra, write it in SQL, or domain relational calculus or tuple relational calculus. Relational calculus is the next topic that we will be studying. ये another languages है जिसमें हम एक सेम क्वेरी को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लिखना सीखेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले तो वी विल बी लर्निंग द प्रोजेक्ट एंड द सिलेक्शन ऑपरेशन. ये कैसे इनको रिलेशनल अलजेब्रा में यूज करते हैं. बेसिकली इफ वी वांट टू सेलेक्ट का सिंबल क्या है, अभी मैं बताती हूँ आपको. पहले तो ये देखो कि आपके जो यूनरी रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे यूनरी रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? दे आर वर्किंग ऑन, दे आर द सिंगल ऑपरेटर्स जिनको दैट डू नॉट रिक्वायर्ड मोर देन वन इनपुट. ठीक है, तो सिलेक्ट बेसिकली काम करता है, दे आर सिलेक्टिंग रोज इन योर टेबल.
एक टेबल के अगर आपको रोज सिलेक्ट करनी है दैट मैचेस योर कंडीशन, तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करते हो, उसके लिए कौन सी ऑपरेशन यूज करते हो? यू आर यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेशन. But if you want to work upon the attributes, you know what are attributes? The columns. If you want to select some of the columns, you want to retrieve some of the columns, then for working upon the columns, the operator that you are going to use is projection, project. ठीक है, तो select, ध्यान रखो कि select हमेशा काम करता है टपल्स के साथ, प्रोजेक्ट हमेशा काम करता है एट्रीब्यूट्स के साथ, मतलब कि कॉलम्स के साथ. इज इट क्लियर? ये दो बातें सबको क्लियर है? Now we have to proceed ahead कि select का further syntax क्या है and how does select work. ठीक है, so सबसे पहले relational algebra क्या होता है? Relational algebra basically it comprises of various set of operations. ठीक है, from the relational model. हमने relational model पढ़ा है. Relational model क्या है? What is relational model? Why the class strength is so low? Yes, why the class strength is so low? 28 students है खाली. Just drop a message in your group to join the class. Maybe some of them are not knowing कि class start हो चुकी है. Yes, relational model क्या होता है रूपल? What is relational model? हाँ जी, what is a relational model? Come on, you are in the class. Rupal, I'm asking you, what is relational model? If you don't know, you can simply say that I don't know, ma'am. Ma'am, I'm in class. हाँ जी, I'm in the class, ma'am. हाँ तो you know relational model? क्या होता है relational model? Do you know or not? No, ma'am. कमाल है. What about other Shreya? Shreya Gupta. Oh God. Who wants to answer? Muskan? Muskan, roll number 62. बहुत difficult question नहीं पूछा है मैंने. Come on. So relational model is one of the data model that is used to describe the conceptual schema or the structure of your database. With the help of relational model, we'll describe how the data is represented in the form of tables, in the form of rows and columns. So that is your relational model. I think हमने ये परसों ही तो पढ़ा है. परसों सब रिवाइज किया है ना relational model, उसके सारे constraint. Then why don't you able to answer? You guys are not studying at all. So relational model पे there is one language, one query language, or we can say one procedural query language which we call as relational algebra, that is made up of various set of operations. कौन से operations है वो हमें अभी पढ़ने हैं. Two basic operations that we will be seeing very soon is selection and projection. Select operator हमेशा काम करता है rows के साथ और project operator हमेशा काम करता है आपके attributes के साथ. Now this is your select operator. Select operator basically क्या है? This is one of your unary operator. Why we are calling it as unary operator? Because it requires only one relation to work upon. मतलब relation का मतलब क्या है? Table. जैसे अगर आपकी कोई स्टूडेंट टेबल है या एम्प्लॉय टेबल है, इसको दो टेबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक टेबल पे काम करेगा. ठीक है, तो ये यूनिरी ऑपरेटर है. एंड ये क्या रिटर्न करता है? इट ऑलवेज रिटर्न अ सेट ऑफ टपल्स. जैसे मैंने बोला सिलेक्शन ऑपरेशन हमेशा काम करता है रोज पे. तो अगर आपको कुछ रोज रिट्रीव करनी है बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया, तो उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? सिलेक्ट. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिलेक्ट? सी. दिस इज द सिग्मा जैसे सिंबल होता है ना, सिग्मा. ये सिग्मा का सिंबल है, देख रहे हो ध्यान से? दिस इज योर सिंबल. Yes, ma'am. और इसके सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे देखो, ये सबस्क्रिप्ट में एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, सबस्क्रिप्ट के अंदर यू आर गोइंग टू राइट योर कंडीशन कि आपको किस बेसिस पे कौन कौन सी टपल्स को सिलेक्ट करना है, वो यहाँ पर कंडीशन लिखोगे. और राउंड पैरेंथेसिस के अंदर आर का मतलब क्या है? द नेम ऑफ योर टेबल. दैट मीन्स द नेम ऑफ द रिलेशन थ्रू विच यू वांट टू सिलेक्ट द टपल्स.
तो just write down the syntax of select operator. What is the syntax of select operator? You are going to write sigma. Subscript के अंदर you are going to write the selection condition, where your selection condition can use any of the operator. You can use boolean condition like and or not, or you can use your logical operator, arithmetic operator, relational operator. कोई भी operator use कर सकते हो, greater than, less than, जो भी आपको use करना है according to retrieve your tuples. We will be seeing number of examples, so that we'll be learning how to use this selection operator. ठीक है, और उसके बाद जो आपकी ये जो selection condition बनेगी, the selection condition would make use of all these clauses. देखो इतना इन पे कंफ्यूज मत हो, जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. ये एक बहुत ही नॉर्मल थिंग है जो हर किसी को बनानी आती है. कि अगर आपको एम्प्लॉय टेबल से आई वांट ऑल द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय दैट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 5, तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ. आप लिखोगे सिग्मा. आई डोंट हैव द सिग्मा सिंबल इन माय कीबोर्ड, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं सिंपली सिग्मा लिख रही हूँ. ठीक है, सिग्मा. और फिर मैं क्या लिखूंगी कि आई वांट ऑल द टेबल्स दैट बिलोंग्स टू ऑल द टपल्स दैट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 5. तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नंबर इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट. ठीक है, इक्वल्स टू 5. एंड कौन सी टेबल से चाहिए, लेट्स सपोज द नेम ऑफ द टेबल इज, लेट्स सपोज द नेम ऑफ द रिलेशन इज डिपार्टमेंट. तो सिंपली मैंने क्या लिखा, सिग्मा. in order to show कि ये सबस्क्रिप्ट में है, I am using this angular bracket. But when you are going to write ये questions, theory questions आपके न्यूमेरिकल की फॉर्म में एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं एक वर्कशीट बनाऊंगी जिसमें आई विल बी गिविंग यू नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा इन वेरियस लैंग्वेजेस. जब हम 3-4 लैंग्वेजेस पढ़ लेंगे ना, रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ लेंगे, कैलकुलस भी पढ़ लेंगे, तब आप एक ही क्वेरी को यू कैन प्रैक्टिस कि उसको डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो वहां पर आप लिखोगे सिग्मा, सबस्क्रिप्ट में लिखोगे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 5 और कौन सी रिलेशन है, डिपार्टमेंट. तो दिस इज अ बेसिक सिंबल. ठीक है, दिस इज द बेसिक सिंटेक्स. लेट्स प्रोसीड अहेड. इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये एग्जाम्पल देखो ध्यान से. व्हाट इज दिस क्वेरी इज ऑल अबाउट. कभी पता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें आपको एक क्लॉज दे दिया जाता है. क्लॉज मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी दे दी और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए उनके ये क्वेरी के रिजल्ट. यू हैव टू टिक द राइट क्वेरी, मतलब कि क्या सही आंसर है. तो यू इसका मतलब क्या है कि आपको आंसर को भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आंसर दिया हुआ है कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर 4 एंड सैलरी ग्रेटर देन 2500 और डिपार्टमेंट नंबर 5 सैलरी ग्रेटर देन 30,000. तो व्हाट इज द क्लॉज फॉर इट. इसके लिए व्हाट विल बी द प्रोपोजिशनल लॉजिक. क्या क्वेश्चन होगा इसका, क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट, व्हाट इट इज गोइंग टू रिट्रीव. क्या आंसर आएगा इस टेबल, इस क्वेरी का, बताओ. employees from department 4 who have हाँ, salary greater than 2500 or yes. और employee yes. from department 5 who have salary greater than 30,000. Yes. So the question is, you have to select all the employees that belongs to student department number 4 and their salary is greater than 2,500, or you have to select the employees that belongs to department number 5 and their salary is greater than 30,000. So this is your question. So how you are going to write the same question, इस query को कैसे लिखना है. देखो आप पूरा बता रहे हो with the help of various operator. That's why we are telling it is relational algebra is a procedural language. Procedural language मतलब you are telling the complete procedure how to retrieve the data. ठीक है, क्या प्रोसीजर बता रहे हो कि आपको सिलेक्ट करना है सिग्मा, सिलेक्ट, राउंड पैरेंथेसिस के अंदर आपने अपनी लॉजिक लिखा, सिलेक्शन कंडीशन लिखी. क्या कंडीशन लिखी, डिपार्टमेंट नंबर 4 से होना चाहिए एंड क्या है यहाँ पर आपका लॉजिकल ऑपरेटर है ना, that's why you have written and salary is greater than. Please make sure that you have to make use, उन्हीं कॉलम का नाम लिखोगे जो आपके टेबल के अंदर जो कॉलम है, नहीं तो आउटपुट गलत आएगा. ग्रेटर देन 2500, एक ये क्लॉज हो गया, उसको आपने राउंड पैरेंथेसिस में बंद किया, फिर और लिखा,
फिर दूसरा क्लॉज लिखा कि डिपार्टमेंट नंबर 5 से हो और उसकी सैलरी ग्रेटर देन 30,000। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्लॉज हुआ। और राउंड पैरेंथेसिस में दिस शुड नॉट बी इन सबस्क्रिप्ट, ये आपको नॉर्मल में होगा कि रिलेशन का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो ये क्वेरी सबको क्लियर है? नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। ओके, सी दिस थिंग। ये तो हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज सिंटेक्स। अब इसी चीज को अगर आपने एसक्यूएल में करना है, एसक्यूएल में सबको पता है ना कैसे करते हो। एसक्यूएल में कैसे लिखते हो, यू सिंपली राइट सिलेक्ट स्टेटमेंट। आप सिलेक्ट लिखते हो स्टार फ्रॉम आर वेयर। तो जो आपकी वेयर कंडीशन है उसको आप कहाँ लिख रहे हो, यहाँ पे। ठीक है, जो आपकी वेयर कंडीशन है, यू आर राइटिंग दिस वेयर कंडीशन इन द सबस्क्रिप्ट एंड फ्रॉम आर, आर को कहाँ लिख रहे हो, यहाँ पे। और ये जो भी उस यहाँ पे स्टार लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी इस कंडीशन को मैच करेगा सारी टपल सारी रोज रिट्रीव होके आ जाएंगी। तो यू नीड टू नो हाउ यू कैन राइट द सेम क्वेरी इन योर रिलेशनल अलजेब्रा आल्सो इन योर एसक्यूएल। तो आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो दोनों लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा में भी और एसक्यूएल में। Now let's proceed ahead. इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखो कि क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली है इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि लेट सपोज आप जैसे कुछ आपके पास एक सेम ही रिलेशन है, उसमें से पहले आपने ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन आपने कुछ टपल्स सिलेक्ट किए, उन टपल्स में से फिर कुछ और टपल्स सिलेक्ट किए। दैट मीन्स पहले तो सिग्मा C1R, मतलब यू आर सिलेक्टिंग सम ऑफ द रोज according to this condition 1 from this relation, and then you are selecting from the particular selected tuples, you are further putting some more constraint, you are putting some more selection condition, and you are retrieving some more the leftover rows. You getting me? तो आपने अगर C1 को पहले अप्लाई किया फिर C2 को किया, तो यू कैन डू इट अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि पहले कंडीशन 2 लगा दी फिर कंडीशन 1 लगा दी। तो दिस इज इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि C1 पहले अप्लाई हो रही है उसके बाद C2 अप्लाई हो रही है, तो यू कैन सिंपली राइट C1 एंड C2, लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज कर सकते हो। तो रिलेशनल मॉडल जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि इज डू नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट टपल्स, डू नॉट अलाउड डुप्लीकेट टपल्स। एज विद जो हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा था उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से आपका जो टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट पढ़ा था ना हमने रिलेशनल मॉडल में, that says that no two tuples having the similar values is allowed. So हमें पता है कि relational model is set based and it do not allow any duplicate value. So selection cannot produce duplicates. That's why equivalence is applicable. Selectivity भी applicable है। Selectivity क्या कहती है कि fraction of tuples selected by the selection condition, basically आपने कोई कंडीशन अप्लाई करी किसी रिलेशन पे, उसको उस रिलेशन से ये वाला एग्जांपल हम पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। अब एक एग्जांपल देखते हैं। चलो लेट्स सी द एग्जांपल। इस अपनी नोटबुक्स निकाल लो और उस पे इसको सॉल्व करो। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, उस एम्प्लॉय की आईडी है हमारे पास, नेम है, उसका सेक्स है, डिपार्टमेंट है और जॉब टाइप है। ठीक है, नाउ this is a simple query which we have written in your SQL language ki select star from employee where job type is faculty. We have to find out the details of all the faculties. ठीक है, all the employee that are having their job type as faculty. तो आपने इसको लिख दिया। अब इसको आप उसमें लिख के दिखाओ रिलेशनल अलजेब्रा में, सेम क्वेरी को रिलेशनल अलजेब्रा में लिख के दिखाओ। हाँ जी, लिख लिया सबने? यस क्लास।
I am just looking for some more practical questions that I can ask from you. Just give me a moment, ठीक है? Okay. So I'm just sharing this file to you. Just hang on. All right. आपका जो बुक आपके पास है ना 4th की, उसमें भी रिलेशनल अलजेब्रा का एक सेपरेट चैप्टर है पूरा, ठीक है? बाय द नेक्स्ट क्लास आई विल बी शेयरिंग द क्वेरीज फ्रॉम दैट चैप्टर. आप अगर आज जितना पढ़ लेते हो उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है? ऑलवेज डीबीएमएस के जितने भी क्वेश्चन मैंने कहीं पे भी देखे हैं ना, all the questions are asked always from the back exercise. Most of them. Yourself, who's this Saransh? तो बैक एक्सरसाइज के हर एक चैप्टर के हमने जो एक चैप्टर पढ़ा है ईआर डायग्राम वाला, उसकी भी बैक एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम 4th. रिलेशनल अलजेब्रा इज हैविंग अ सेपरेट चैप्टर. उसकी बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो करो, ठीक है? सो उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ लुक एट दिस टेबल. ये एक लोन नाम की टेबल सबको दिख रही है? सबको शेयर हो गया ना? हाँ. तो इसके अंदर देखो हमारे पास ब्रांच नेम है और लोन नंबर है और अमाउंट है, ठीक है? नाउ आई हैव टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस दैट बिलोंग्स टू पेरी राइट, ठीक है? तो मैं कैसे लिखूंगी? आई सिंपली यूज सिग्मा और सिलेक्शन कंडीशन में क्या लिखना है मेरी क्वेरी क्या है? क्वेरी है कि मुझे ब्रांच नेम पेरी राइट की डिटेल्स चाहिए. तो ब्रांच नेम इक्वल्स टू पेरी राइट. कहाँ से डिटेल चाहिए? तो आई नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द रिलेशन. तो राउंड पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या लिख दिया? लोन. तो क्या आंसर आएगा? हाँ जी सागर, कितनी रोज आएंगी? क्या हाउ मेनी टपल्स आई वुड आई एबल टू रिट्रीव फ्रॉम दिस क्वेरी? जल्दी बताओ सागर. अरे आप सुनते हो कि नहीं सुन रहे हो क्लास में यार? Who wants to answer? तनुज अग्रवाल. अरे बहुत सिंपल है, प्लीज आंसर द क्वेश्चन. तनुज बिल्कुल चुप रह के यू सिंपली इग्नोर्स अ टीचर. नंबर 127 यशस्विनी शर्मा. माल है, ठीक है. अभी तो मैम आप 2 टपल. मैम 2 आना चाहिए. हाँ, तो इतना बोलने में आंसर 2 नहीं आएगा. नंबर ऑफ टपल्स विल बी 2. आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर आएगा आपका this row Perry right loan number 15 and 1500 amount and this row Perry लास्ट रो. loan number 16. मतलब कि इस ब्रांच से 2 लोन लिए गए हैं, लोन नंबर 15 एंड लोन नंबर 16, और कितने अमाउंट का लोन लिया गया? 1500 और 1300. तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए थी तो ये सिलेक्शन ऑपरेशन जो है वो हमेशा क्या रेज करता है? यस आयुष. मैम क्योंकि टेबल में कैपिटल पी है और यहाँ हम एज अ स्ट्रिंग में स्मॉल पी ले रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं होगा? देखो दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि ये डेटा है, ठीक है? और डेटा कुड बी केस इनसेंसिटिव. ये जो है केस इनसेंसिटिव होती है डीबीएमएस. बट मेरे ख्याल से दिक्कत आएगी क्योंकि एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, स्ट्रिंग में तो अलग अलग हो जाता है. यस. तो यहाँ पर इन्होंने वैसे किया हुआ है, बट आप सेम फॉन्ट यूज करोगे, सेम केस यूज करोगे, ठीक है? अगर आप लोअर केस में दोगे तो लोअर केस यूज करोगे, जो केस में दोगे उसी केस में यूज करोगे, ठीक है? तो क्लियर है आयुष? तो यहाँ देखो 2 हमारे पास आ गए. अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमने पढ़ना है दैट इज प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या कहता है? प्रोजेक्शन ऑपरेशन एज आई टोल्ड यू इट ऑलवेज वर्क्स ऑन एट्रीब्यूट्स. दैट मींस इट ऑलवेज वर्क्स अपॉन योर कॉलम नेम, ठीक है?
तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स है, सिलेक्शन का सिंटेक्स सबको क्लियर है? हाउ डज सिलेक्ट ऑपरेटर वर्क्स? सबसे पहले तो इसका सिंबल होता है पाई की तरह, जैसे आप पाई यूज करते हो ना मैथमेटिक्स में, उसी की तरह इसका सिंबल है पाई. And then you are going to write the name of the attributes that you want to select, that is A1, A2 up to AN. और कहाँ से सिलेक्ट करने? R में से सिलेक्ट करने. तो let me share that PDF again जो हम पढ़ रहे थे. तो प्रोजेक्शन हमें पढ़ना है. प्रोजेक्शन के अंदर दिस इज योर प्रोजेक्ट ऑपरेटर. तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर का सिंबल सबसे पहले पाई लिखोगे आप. देन in the subscript you will write all the attribute list that you want to retrieve. जैसे आपको किसी का फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है? कहाँ से चाहिए? एम्प्लॉय से. तो आपने लिखा प्रोजेक्शन, first name, last name, address, salary, all the attributes are separated by commas. No round parentheses are being used over here. ठीक है? You can use, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है? उसके बाद एम्प्लॉय, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है. अगर आपको कंडीशन देनी है कि आपको किसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सैलरी चाहिए, तो उसके लिए आप कंडीशन के लिए सिलेक्शन यूज करोगे. कैसे यूज करते हैं वो अभी हम देखेंगे. द कॉम्बिनेशन ऑफ टू. ठीक है? विल बी लर्निंग कि हम कैसे सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को इकट्ठे यूज करते हैं. और एक और चीज, प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो है हमेशा हमें डिस्टिंक्ट टपल्स देता है. डिस्टिंक्ट टपल्स, ये एक चीज आप याद रखो कि सिलेक्शन, अभी हमने सिलेक्ट पढ़ा और हम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं. सिलेक्ट में हमारे पास रोज आ सकते, टपल्स आएंगे, ठीक है? और प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या आएंगी? कॉलम्स. अगर आपके पास लेट सपोज कुछ डुप्लीकेट डेटा है, टपल्स है, ठीक है? तो बट इट ऑलवेज गिव्स यू व्हाट? इट ऑलवेज गिव्स यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज. ठीक है? डिस्टिंक्ट टपल्स देगा. क्या मतलब है इसका? इसका भी हम एक एग्जांपल से समझाती हूँ. ठीक है? Let me show you with the help of some table. एक टेबल से की हेल्प से बताती हूँ. यहाँ पे डिस्टिंक्ट इन एसक्यूएल. एसक्यूएल में आपको डिस्टिंक्ट ऑपरेटर लिखना पड़ता है सेपरेटली, बट अगर आप रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोजेक्ट ऑपरेटर यूज करें तो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग डिस्टिंक्ट. जैसे अगर कोई भी आपके पास टेबल है, लेट मी ड्रॉ अ टेबल, उसकी हेल्प से बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा शायद. नेम, एज और कोर्स. ठीक है? लेट सपोज नेम है हैरी, उसका एज है 27 और उसका कोर्स है CSC. ठीक है? अब CSC नहीं लेते हैं, म्यूजिक लेते हैं. और यहाँ पे एक है जॉय, उसका एज है 25 और उसका है डांस. और हैरी ने पेंटिंग भी ज्वाइन किया हुआ है. और एक और है ठीक है? अब आप जब इस पे प्रोजेक्ट करोगे, जैसे आपने लिखा प्रोजेक्ट एज कॉमा कोर्स. ठीक है? और कहाँ से प्रोजेक्ट करना है आपने? स्टूडेंट टेबल से. लेट सपोज इस टेबल का नाम है स्टूडेंट. तो क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आंसर आएगा? एज के अंदर क्या क्या आएगा? 27 और कोर्स म्यूजिक और एक 25 कोर्स डांस और ये यहाँ पे 116. एक आएगा पेंटिंग और एक यहाँ पर आएगा डांस. सॉरी, डांस हो गया ना, पेंटिंग हो गया. और एक आपकी आएगी 16. मतलब कि इट विल नॉट गिव यू डुप्लीकेट वैल्यू. सो यहाँ पर 27 क्योंकि दोबारा था तो इट विल नॉट गिव यू दैट.
क्योंकि डांस यहाँ पे दोबारा था तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई। तो जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है इट ऑलवेज गिव्स यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट टपल्स। और अगर यही चीज आपको एसक्यूएल में करनी होती है ना, इफ यू वांट डिस्टिंक्ट डेटा, तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का सेपरेटली यूज करोगे। ठीक है, तो इसका और एग्जांपल मैं, ये तो मैंने ऐसे खुद से बना के दिया है। अभी वी विल बी लुकिंग और मोर एग्जाम्पल्स जो इस चीज को और इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रोजेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी क्या है, इक्विवेलेंस, वही प्रॉपर्टी कि अगर आपने कुछ पहले L1 लिस्ट ली फिर L2 लिस्ट ली, is equals to L2R as long as the attributes used by CR in there. Okay. इसका मतलब पता है क्या है कि अगर आप के पास कुछ लिस्ट है L1, ऑब्वियसली कुछ कुछ जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, एड्रेस, फिर उसमें से आपने सैलरी और एड्रेस निकाल लिया, इट इज ऑटोमेटिकली बीन इक्वल्स टू कि आपने डायरेक्टली सैलरी और एड्रेस निकाल लिया है ना। कि जरूरी नहीं ना कि पहले आपने L1 निकालो फिर L1 में से L2 निकालो, आपने सीधा ही L2 निकाल लिया, तो इट इज इक्वल्स टू दैट। मोरओवर द सेकंड इक्विवेलेंस कंडीशन क्या कहती है कि पहले आपने सिग्मा, मतलब कि कुछ आपने टपल्स को सिलेक्ट किया, उन सिलेक्टेड टपल्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स को फेच किया, गेटिंग मी। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पहले आपने कुछ एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट किया, उस लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में से आपने कुछ टपल्स को सिलेक्ट किया। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस मैम ये प्रॉपर्टी, सेकंड वाला होल्ड करेगा क्या? यस इट विल होल्ड अगर जिन एट्रीब्यूट्स को आपने सिलेक्ट करना है वो उस टपल्स के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देना चाहती हूँ, लाइक कोई एक आर्बिट्री टेबल बनाओ। लेट सपोज मैंने कोई एक टेबल बनाई, नेम, एज, रोल नंबर और आपका कोर्स। ठीक है, और अब इसमें जो भी रैंडम वैल्यूज है, ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, मुझे चाहिए कि मैंने बोला सिग्मा, मतलब सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है मुझे, एज जिनका ग्रेटर देन 24 है फ्रॉम दिस स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जितनी भी टपल्स है जिनकी एज 24 से ज्यादा है वो सारी आ गई, है ना। तो मेरे पास लेट सपोज अगर मेरे पास टोटल 20 रोज थी जिसमें से 5 रो की एज 24 है, तो मेरे पास कितनी टपल्स आ जाएंगी, 5 टपल्स आ जाएंगी जिसके जिनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, नेम, एज, रोल नंबर, कोर्स, और एज में सबकी वैल्यू क्या है, 24। क्लियर, क्लियर और नॉट। अब मेरी क्वेरी क्या है, क्वेरी समझो, मेरी क्वेरी है कि आई वांट द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, just listen to me carefully, I want the name of all the students whose age is greater than 24. Question is, find the name of all students whose age is greater than 24. Okay, this is my question. Now in this question you are going to use this property. That means you are first of all finding selecting all the tuples जिनकी एज 24 से ज्यादा है, और उन सिलेक्टेड टपल्स में से फिर आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, खाली नेम। गेटिंग मी। तो आपके पास अभी तो वो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वो रोज आ गई जिनकी एज ग्रेटर देन 24 है। फिर उसमें से आपने क्या फर्दर प्रोजेक्ट करा दिया, फिर आपने क्या प्रोजेक्ट करा दिया, आपने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट दैट मीन्स आप पाई सिंबल यूज करोगे, प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट किया, योर नेम। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। ये क्लियर हुआ एग्जाम्पल, हाँ क्लियर हुआ। अभी हम ना पढ़ेंगे, बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे, तो उसमें इन चीजों का तो बहुत कॉमनली यूज होने वाला है। अभी एट दिस फर्स्ट स्टेज ये क्लियर हुआ एग्जाम्पल सबको। मैम इसका RHS वाला होल्ड करेगा क्या इस एग्जांपल के लिए? अच्छा, लेट मी जस्ट ट्राई आउट। देखो
इसका लेफ्ट राइट हैंड साइड भी ट्राई करते हैं कि मैंने पहले प्रोजेक्ट करा लिया। मैंने क्या प्रोजेक्ट कर लिया? अब यहाँ पे ना मेरे को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा वो वाला एट्रीब्यूट भी जिस पे मुझे क्वेरी करनी है। दैट मीन्स मेरे को तो नेम चाहिए, ठीक है, नेम चाहिए, प्लस मुझे एज भी चाहिए क्योंकि मुझे एज पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है, एज लॉन्ग एज ऑल एट्रीब्यूट यूज्ड बाय सी, दैट मीन्स द कंडीशन आर इन एल। गेटिंग मी? कि जो मैं लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट कर रही हूँ दैट शुड बी प्रेजेंट इन एल। यहाँ पर एज होना चाहिए क्योंकि एज कौन यूज कर रहा है? सी यूज कर रहा है। क्योंकि मुझे जब मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ नेम और एज किस में से? स्टूडेंट में से, और फिर उसको मैं उसमें से मैं सिग्मा करा रही हूँ। मैम तो अगर जैसे किसी भी तो दो यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्मा एज में कर रही 20, हूँ नेम एज पे, एज ग्रेटर देन 24। क्योंकि अगर एज अगर यहाँ पर होगा तभी मैं एज को सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ मैम पर हाँ बोलो। जैसे अगर दो स्टूडेंट का एज आपको 25 है, हाँ, प्रोजेक्ट में केवल एक ही आएगा, दूसरे में नल स्टोर हो जाएगा, उस स्टेज में फिर कंपेयर कैसे होगा? दो स्टूडेंट का एज 25 है, हाँ, तो मेरे को तो नाम चाहिए ना। मैम एज वाले कंडीशन से ही चेक कर रहे हैं ना, तो दूसरे वाले में तो नल स्टोर हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट रहता है इसमें। प्रोजेक्शन में डिस्टिंक्ट रहता है, हाँ। बट नाम तो आएंगे ना दोनों के। इसमें नाम तो आएगा लेकिन एज वाला एक का तो नल रहेगा, एक में स्टोर नहीं होगा। उसके बाद सिग्मा में तो हम एज से कंपेयर कर रहे हैं ना। चलो इसको देखते हैं अभी। जो क्वेरी सॉल्व करेंगे तो आई थिंक तब ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, डोंट गेट सो इन्वॉल्व इनटू दिस। इसकी क्वेरी जब सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है आयुष, इस चीज को we'll be looking these things in very detail when we solve the queries. We are just learning the basic things. अभी तो हम रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट प्रोजेक्ट। इनकी जब क्वेरीज करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर तब हमें होगा। ठीक है, अभी ये क्लियर हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाला आपकी बात में समझ गई कि वो नल हो जाएगा तो आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये कंडीशन लिखी हुई है कि जो भी हमें यूज करना है सी के अंदर दैट शुड बी प्रेजेंट इन एल, तभी हम उस पर कंडीशन लगा सकते हैं। और एक और बात मैं आपकी भी समझ गई कि क्योंकि प्रोजेक्ट ऑपरेटर हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज देता है, तो वो कैसे काम करेगा? तो उस केस में हम राइट हैंड साइड नहीं यूज करेंगे ना, हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। ठीक है, और इस चीज को और इलैबोरेट करेंगे जब हमारे पास ये एक्चुअल में कंडीशन आएगी। ऐसी सिचुएशन जब प्रेजेंट होगी तब इस चीज को और देखेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास है एक क्वेरी कि यू हैव टू सिलेक्ट द नेम, सेक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द जॉब टाइप फैकल्टी। मतलब कि नेम सिलेक्ट करना है, सेक्स सिलेक्ट करना है और डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है जॉब टाइप फैकल्टी का। तो इसका क्वेरी लिख के बताओ। दिस इज अ क्वेरी इन एसक्यूएल। इसकी रिलेशनल अलजेब्रा में लिखो जल्दी से। अटेंडेंस भेज दी मेहुल। यस, इसका कर सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल। इसके अंदर दोनों यूज होगा, सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आप इसमें सिलेक्ट करोगे, क्या क्या सिलेक्ट करना है आपको, या सिंपली यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जॉब टाइप। आपने सिलेक्ट किया जिसका जॉब टाइप फैकल्टी है वो सारी रोज आ जाए। उन रोज में से आपने प्रोजेक्ट करा दिया नेम, सेक्शन, डिपार्टमेंट को। ठीक है, कैन यू राइट दैट क्वेरी? आई थिंक दिस यस इज मैम।